Hello, friends. A very common question that I come across is that most of the aspirants want to know, sir, what are my chances of selection? Right? See, I understand it's a very natural question to ask, but you must understand that the answer of this question does not hold much value. I will tell you why. I mean, just imagine like you are already preparing for 2020 or 2021, and now you ask me, sir, what are my chances of selection? Right? Now, if I genuinely say that I don't think so, you will get selected, will you stop preparing just because I have told you not to prepare? I don't think so, right? Even if you believe somewhere you will not get selected, but still you will go ahead and give that attempt, right? So point is, the decision is already made, right? You have already made that decision when you started preparing कि I am going to give this particular attempt. Okay, तो जब आपने ये डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, आप बार बार उस चीज़ को क्वेश्चन प्लीज़ मत करो, क्योंकि मेरा पॉइंट सिंपल है. सी इफ़ यू गो टू योर वेल विशर्स, यू नो, दे विल प्रॉबेबली से येस, चाहे उनको खास पता होगा नहीं पता होगा, दे विल से येस. इफ़ यू आर आस्किंग मी ऑल्सो, मोस्ट प्रॉबली आई विल से येस, बिकॉज पॉइंट इज आई डोंट नो मच अबाउट यू, बट स्टिल आई विल से येस. रीजन बीइंग, आई नो समवेयर येस इज वॉट यू वॉन्ट टू हेयर, क्योंकि you are basically doubting yourself and you are coming to me कि if somebody else who has knowledge of this exam will say कि I have a chance, so I will be able to prepare better with more confidence, etc., etc. I understand that, right? But at times it can happen that you may go to some people and they may say कि तेरा selection नहीं होगा या you will not be selected. In that case you will be heartbroken. I will tell you my story to, you know, get through this point. I don't know the reason, but my parents were dead against this UPSC business and all, because they felt that I had studied so much, I had such a great job, I had such a great career, and I quit all that just because of my UPSC infatuation. It was love, but they thought it was infatuation. Anyways, so point is, I mean, two attempts and I was not able to clear the mains, and I missed by very narrow margin, like 3 marks in the first one and 5 marks in the second one, right? So I happened to talk to my mother and I said कि मम्मा मेरा पता नहीं हो ही नहीं रहा है, क्या मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, right? So it was basically a sense of frustration which I think is very very normal कि अगर आप इतने नैरो मार्जिन से इस तरह का एग्ज़ाम मिस करते हो, so potentially everybody at that moment wants to hear नहीं, you just need to try harder, you are on the right path, और इतने नैरो मार्जिन से मिस हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे हो या नहीं हो. आई गेस दैट इज द स्टैंडर्ड आंसर दैट ऑल ऑफ अस वांट टू हेयर. बट आई डोंट नो, माय मदर सेड हमने तो पहले ही बोला था यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, but you have wasted 2 years of my life, of your life, right? So I don't know, it came as a shock. I mean, I didn't stop preparing, of course, but it came as a shock because for like 1 month I was so short on confidence, I could not concentrate on studies, etc., etc. The only saving grace was that this was like 3-4 months before my prelims, and I had already given 2 prelims and 2 mains, so I understood कि prelims में क्या syllabus है और कैसे preparation and all those things, and everything was prepared, so I just needed a revision. So वो एक महीना जो मेरा lose हुआ because of just this statement, it did not cost me much. बट अब आप अपनी सिचुएशन इमेजिन करो, राइट? अगर आपके केस में जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है, एंड लेट्स से यू अप्रोच समवन हु डज नॉट बिलीव कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, या उसको लगता है आपके अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है, एंड ही और शी टेल्स यू कि यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, सो इट विल बी अ वेरी बिग ब्लो फॉर यू. सो मेरा सिंपल आर्ग्यूमेंट ये है कि आपको इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में क्यों जाना है, क्योंकि पॉइंट इज आपका डिसीजन ऑलरेडी आपने मेक कर लिया है कि आप एटलीस्ट ये वाला अटेम्प्ट ज़रूर दोगे, जिस भी अटेम्प्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 2020, 2021 और 2022, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम. और किसी के कहने से आई डोंट थिंक सो
आपका डिसीजन बदलेगा, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस फ्यूटाइल एक्सरसाइज ऑफ नोइंग कि मेरा सिलेक्शन के क्या चांसेस है, क्योंकि एनीवेज यू नो द स्टैटिस्टिक्स, सिलेक्शन के चांसेस एनीवेज बहुत ही मिनिमल है। आप इस बात को जानते हो कि लैक्स ऑफ पीपल सिट फॉर दिस एग्जाम एंड ओनली 800 to 1000 पीपल आर सिलेक्टेड। उसमें भी अगर आप IAS देखोगे, सो IAS की सीटें अराउंड 150, ओके। उसमें जनरल एंड आप सब करोगे, सो इट्स लाइक जनरल की 75 to 80 सीट्स होंगी IAS की, राइट। सो प्रोबेबिलिटी इज ऑब्वियसली स्टैक्ड अगेंस्ट यू, वी ऑल नो दैट। तो वो आपको कैलकुलेट करके बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे देख के फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज़ देखनी है, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर IAS भी है, जनरल कैटेगरी में 75 सीट्स है ना, मुझे तो एक ही चाहिए। बाकी और डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए मैं 74 सीट्स छोड़ रहा हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। सो प्लीज़ अपने आप को ये सब चीज़ें सोच के गिव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सारे जो सेल्फ डाउट वाली चीज़ें होती है ना कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं से ट्रिगर होता है कि आपको, या तो आप कहीं पे कुछ चीज़ पढ़ लेते हो, या टेस्ट सीरीज़ में आप अच्छा नहीं स्कोर करते, आपके फ्रेंड को देख लेते हो, या किसी और से अपने आप को कंपेयर करने लगते हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, आप अपनी लाइफ को देखोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ होता है। तो मेरे दिमाग में ये सेल्फ जो डाउट आते हैं, वहाँ से वो ट्रिगर होता है, ओके। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उस चीज़ को आप अवॉइड करो। फॉर इंस्टेंस, कई लोग सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं, मतलब कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि लेट्स से आप देख रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है, वो अब्रॉड में सेटल हो गया है, ही इज़ गेटिंग मैरिड, और ही हैज़ पोस्टेड वेरी गुड पिक्स विद हिज और हर स्पाउस, ठीक है। वो सब चीज़ें देख के आपको लग सकता है कि यार वहाँ देखो, वो बंदा इतना आगे निकल गया, ही सेटल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पोटेंशियली वेस्टिंग माई लाइफ, ओके। सो पॉइंट इज़, ये अगर ये वेस्टिंग ऑफ लाइफ भी है, तो ये आपका डिसीजन है, ओके। एंड यू वॉन्ट टू गिव योर अटेम्प्ट एंड यू वॉन्ट टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। उसके लिए बेस्ट इज़ कि आप मिड वे इस तरह का मंथन ना करो, क्योंकि ये मंथन करने का एक वक्त होता है जब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं अपना अगला अटेम्प्ट दूंगा नहीं दूंगा, ठीक है। तो जब वो डिसीजन लेना होता है, आप कितना भी मंथन करो, यू टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन एंड देन यू मेक अ डिसीजन। बट पॉइंट इज, आपने एक डिसीजन ले लिया है, आप बीच में मिडवे आ गए हो, आपने इतनी तैयारी कर ली है, इतने घंटे आपने प्रिपरेशन को दे दिए, प्लीज़ अब हर 1 महीने बाद या हर 15 दिन बाद प्लीज़ ये मत सोचो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, राइट। क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा ना। बट पॉइंट इज, ये सब सोच के चीज़ें बेटर होंगी या एग्रवेट होंगी, आप खुद सोचो। अगर आप ये सब सोचोगे यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आएगा, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा, स्पेशली वो पढ़ाई जिसकी वजह से मुझे अपनी सोशल लाइफ किल करनी पड़ती है, ये सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसेट्रा इसेट्रा, राइट। सो द लिस्ट इज़ लॉन्ग। तो आप देखोगे मैं इतने सैक्रिफाइस कर रहा हूँ और बदले में मुझे क्या मिल रहा है, UPSC तो फिर भी मेरा नहीं होगा, तो इतना सैक्रिफाइस मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ठीक है यार, 2 दिन थोड़ा सा चिल करते हैं, 2 दिन थोड़ा ये करते हैं, बट दैट 2 days इज इम्पॉर्टेंट। सो आप, अगर आपको लगता है कि मतलब ये बड़ा ही एक आयरॉनिकल ऑब्जर्वेशन है, बट दैट्स हाउ थिंग्स फंक्शन, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आप इसलिए वरी कर रहे हो कि यार मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, आई एम वरीड, बट उसका आप सॉल्यूशन क्या करते हो, चल यार एक दिन चिल कर लेते हैं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। आइडियल रिस्पॉन्स शुड बी कि ओ गॉड शिट, मैंने अच्छे से नहीं तैयारी करी है, आई शुड फोकस मोर ऑन माई स्टडीज़, अब से मैं और अच्छे से पढ़ाई करूंगा, क्योंकि और लोग मुझसे आगे हैं, वो मुझसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे अपने लेवल को उनके लेवल के अकॉर्डिंग करना है। बट आपका ये लॉजिक नहीं होता, आपका लॉजिक काउंटर इंट्यूटिव होता है, आप और रिलैक्स्ड हो जाते हो, आप और चीज़ें कम करना शुरू कर देते हो। सो पॉइंट इज, अगर ये सब इश्यूज़ हो रहे हैं, इट्स बेटर कि आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करो, राइट। सी, मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि UPSC इज़ नॉट लाइक योर अदर स्टैंडर्ड एग्जाम्स जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट बुक्स एंड पढ़ाई एंड हार्डवर्क, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है UPSC में, बट UPSC इज़ टू डू मोर विद योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर।
उसका भी टेस्ट है यूपीएससी, क्योंकि ये सब सेल्फ डाउट ये नहीं है कि आप ही के दिमाग में आ रहे हैं, जो लोग टॉप करते हैं उनके दिमाग में नहीं आते, कभी कभी अगर उनका परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं होता उनके दिमाग में भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम इज कि वो लोग इस चीज़ को पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह देखते हैं, वो इसको एक चैलेंज की तरह देखते हैं। अच्छा, किसी और का परफॉर्मेंस मुझसे बेटर है, आई नीड टू स्टडी हार्ड और नेक्स्ट टेस्ट में या नेक्स्ट उसमें इन्विजिलेशन में आई एम गोइंग टू बीट दिस पर्सन, दैट इज हाउ दे थिंक। बट आपके सोचने का तरीका ये है कि नहीं यार वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, वो तो है ही मुझसे बेटर, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, एंड थिंग्स गो डाउन द हिल, राइट। सो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस में अपना टाइम मत वेस्ट करो, ओके। अगर आपको पूछना भी है सर मेरे या चांसेस क्या है सिलेक्शन के, प्लीज़ उस बंदे के पास जाओ जो आपको पता है आपको वो येस ही बोलेगा, बिकॉज अ नो विल डेफिनेटली हर्ट यू, ठीक है। सो गो टू अ पर्सन, लिसन टू दैट येस, अपने आप को काम करो और प्लीज़ मूव ऑन, डू योर प्रिपरेशन। इज दैट क्लियर? सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम इन वरिंग में टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा। अगर आप जेन्युइनली वरी करते हो, प्लीज़ पढ़ाई पे अपने फोकस करो, वरी पे फोकस मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। दैट इज़ द ओनली वे यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट। और रही बात कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले ये वाला दे देते, इसका आउटकम आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर आपको देना पड़ता है देन यू मेक दिस कॉल कि मुझे करना है नहीं करना है। बट अब तो आप आ चुके हो ना, अब मिडवे आने के बाद प्लीज़ अपने आप को रोज़ क्वेश्चन मत करो। एटलीस्ट अब ये अगर अटेम्प्ट आप देने के लिए कमिटेड हो, जो भी आपने अटेम्प्ट प्लान किया है, प्लीज़ गिव दैट विद योर 100%, ओके। बेस्ड ऑन जो भी आउटकम आएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर यू कैन ऑलवेज टेक अ कॉल, दैट इज इंटायरली योर कॉल। आप हर चीज़ को देख के अपनी कॉल लो, बट प्लीज़ वंस यू हैव डिसाइडेड समथिंग, डू नॉट ruin your life by constantly worrying. If you are genuinely worried, study, and honestly I'm telling you things will improve, right? Just give this thing a try and let me know कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं प्लीज़ डू शेयर विद मी, आई वुड लाइक टू help you resolve these issues, right? So see you next time.